ट्रेनों में मांगती है और फिर उससे वो उसकी माँ के लिए डायपर खरीदती है। मेरी मम्मी के लिए कुछ पुराने कपड़े दे दो, मैं चेंज करना चाहती हूँ। एज कितनी आपकी? 18 साल। 18 ਸਾਲ की हो? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। सुबह 4 बजे उठते हो आप? 4 बजे उठ के स्टेशन पे 4 बजे मांगने जाते हो, फिर 4 बजे से कितने बजे तक? तो 4 बजे जब चल जाते हो, बाहर अंधेरा होता होगा, फिर डर नहीं लगता? तो मैं इसको देखता था, सुबह ये इसके डायपर चेंज करती थी। फिर मेरे पास पुराने कपड़ों का काम है, तो मेरे पास ये कपड़े लेने आए। तो मेरे को मामा जी बोली, मेरे को अच्छा लगा कि बेटी है, मैं क्या करेगी तो कपड़ों का। तो ये बोली कि मेरी मम्मी को मैंने कपड़े चेंज करने हैं। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था, तो ये इसका डायपर चेंज कर रही थी। 6-7 बजे काम से आ गई थी। आते ही उसने उसका डायपर चेंज किया, तो मैंने देखा पूरा रूम स्मेल से भरा हुआ है और ये अकेली लड़की कर रही है। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ। बेटा तूने कल से मांगने नहीं जाना, प्रॉमिस कर। क्या? मैं कल से मांगने नहीं जाऊंगा। गुड। आज अगर अब हम इनकी मदद के लिए आए हैं तो वो खुदा ने भेजा। तो आप गली मोहल्ले वाले हो, रात बरात को इसको जरूरत पड़ती है। देखो पहले तो ये बहुत बुरी बात है कि 4 बजे मांगने जाती है, जमाना नहीं है। तुम भी देखो समाज में रहते हो, यहाँ पर लड़कियां सेफ हैं? लुधियाना, पंजाब, यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने गलत काम होते हैं, तो कहाँ सेफ है? सेफ नहीं है ना। तो कोई भी बच्ची है सुबह 4 बजे जा रही है घर से, अच्छी बात नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ NGO ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਭੈਣਾਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇ, ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਕਾ? गंगा रानी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। गंगा जी और मीरो जी। बैठो आंटी जी, बैठो भाई साहब, आप बैठो बेटा, आप बैठो इधर, बैठो भाई जी, बैठो आंटी आप भी बैठो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ।
ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਆਪਣਾਪਣ, ਜੱਫੀ, ਹੱਗ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਈਸ਼ੂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸਰ? राकेश है सर। ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸ਼ਾਮੀ ਸਿਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕੋ ਦਹਿਲਾ ਦੇने वाला केस है। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਤੇ कैसे चलाते हो फिर बहन, घर कैसे चलाते हो, क्या करते हो? 4 बजे हम मांगते हैं। सुबह 4 बजे उठते हो आप? 4 बजे उठ के मांगने जाती है। अच्छा, मांगने जाते हैं। स्टेशन पे 4 बजे मांगने जाते हो, फिर 4 बजे से कितने बजे तक? 7-8 बजे। तो 4 बजे जब चल जाते हो, बाहर अंधेरा होता होगा, फिर डर नहीं लगता? टेम्पू वाले ले जाते तो ले जाता था टेम्पो वाला भी, 3 रुपए ले के। अच्छा, ਟੈਂਪੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟੈਂਪੋ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪੋ ਵਾਲੇ? अलग-अलग से उसा का दे बोलते हैं कोई। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? तो डरने वाली कोई गल ही नहीं, तो है नहीं ना। नहीं मन, आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं रात सुबह 4 बजे उठ के जा रही हूँ? कोई कभी मन च आया इदां ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਗਣ? थोड़े दिन हो गए। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? कुछ नहीं घर से रहते सी। ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? कोई दादा अंडा से मेरा भरा। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? देसी दवाई लिखी और भी जल्दी कोई देसी ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पै रहा? कब से देख रहे हो भाई साहब आप इनको ऐसे ही? मैं सर इनको काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था। तो मैं सुबह के टाइम में जब भी दूध लेने के लिए जाता था घर में चाय बनाने के लिए, तो मैं इसी गली से आता था। तो मैं इसको देखता था सुबह, ये इसके डायपर चेंज करती थी। फिर मेरे पास पुराने कपड़ों का काम है, तो मेरे पास ये कपड़े लेने आए। तो मेरे को मामा जी बोली, मेरे को अच्छा लगा कि बेटी है, मैं क्या करेगी तू कपड़ों का? तो ये बोली कि मेरी मम्मी को मैंने कपड़े चेंज करने हैं। मगर क्या हो गया? तो बोली मेरी मम्मी को पैरालाइज है। आप पहली बार मिले थे जब ये आपके पास पहली बार ये थी कपड़े लेने? कब की बात है? ये कुछ दिन पहले की बात है। अच्छा, उससे पहले आपको भी इनकी स्टोरी नहीं पता नहीं था? पता थी। अच्छा, कुछ दिन पहले ही पता कुछ लगा? दिन ही पहले मेरे को पता लगा। तो जैसे ही मैंने इसको देखा, सुबह 6 बजे का टाइम था, तो ये इसका डायपर चेंज कर रही थी। 6-7 बजे काम से आ गई थी। आते ही उसने उसका डायपर चेंज किया, तो मैंने देखा पूरा रूम स्मेल से भरा हुआ है और ये अकेली लड़की कर रही है। तो फिर मैंने देखा वाकई ही ये मदद के लायक है। ये लड़की होकर के इतना कर रही है, तो मैं कहता हूँ कि बेटों से बढ़िया तो लड़कियाँ काम बेटा करती होता नहीं करता इतना। हैं। बेटा कौन करेगा? बेटा तो नहीं करता करेगा। मैं बेटा होते हुए ये बात बोल रहा हूँ, सॉरी चाहे गलत हो। और फिर एकदम से मेरी आत्मा अंदर से झंझोट पड़ेगा और मैंने सोचा कि चलो ये आपको मैं बता दूं, आप हेल्प करते हो तो। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਨਜੀਓਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ, अब बात क्या है, अब ये जो केस वीडियो चल रही है, मैंने केस सुना, मेरी टीम ने सुना, वो सबके ही मन खराब हो गए सुबह से कि ये कैसी रह रही है। इनके लिए 2 लाख 5 लाख इकट्ठा करना 5 मिनट का खेल है, पर वो 5 लाख इनके काम का नहीं है, क्योंकि जो इनका फ़र्ज़ बेटी निभा रही है, अब इनको जो कहते हैं ना दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं कर सकता। अब कोई बाप बीमार है,
उसके आप पास जाके लाखों की ढेरी लगा दो, उसको औलाद का सुख चाहिए होता है। माँ बाप क्यों परेशान होते हैं कि हमारी औलाद हमें पूछती नहीं। औलाद, माँ बाप के पास पैसा होता है फिर भी अपनी औलाद को रोते हैं, क्योंकि वो औलाद के साथ कनेक्शन होता है ना। इंसान है, माँ अपनी है, बाप अपना है, बच्चे अपने हैं, तो वो कनेक्शन है वो पैसों से दूर नहीं हो सकती। ਤਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि पूरा मोहल्ला बड़ा खुश नसीब है कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ कितने दिन पहले पता लगा आपको उनके केस के बारे में? हफ्ता भर हुआ होगा। ਹਫਤਾ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਂਟੀ आप कब से देख रहे हो, आप कब से इनको जानते हो? ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨਡੀ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਖਾਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ, ਇਹਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੰਡ ਸੀ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸੀ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ- ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਐਸਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਪੜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਈ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੜਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਪੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਾ ਦਈਏ? ਸਕੂਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ? ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਂਗੀ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰੇ ਤੇਰੇ ਟਿਫਨ ਲਵਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਭਾਈ को बताई दे दे भाई इनकी रोटी भाई हाथ जोड़ मैं करा दांगा सर। ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। मैं करा दांगा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣੀ। मैं देख करा दांगा, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। मैं करा दांगा सर। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਸਰ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜप्पन ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। देखो जी, गुरु जी ये कहते हैं कि तन मन धन से सेवा करे। मैं धन से भी खाली हूँ, मन से तो बिल्कुल ही खाली हूँ। अब तन बचा तो तन से मैं सोच रहा हूँ कि होठ हिले, हाथ हिले, उससे कुछ होता है तो मैं कर। आप इनको आप हमें गली के बाहर से इनके घर लेके आए हो। देखो आपका तन भी लगा है, मन लगा है, क्योंकि आपने 6 बजे सुबह उठ के लगा, और धन लगा, आपने कपड़े अपनी जेब में से दिए। आपने तीनों तरह की सेवा की है, तन मन और धन। ये बोलने की बात है, पता है क्या? देखो, किसी को गिलास आधा, कोई कहता है गिलास में पानी है, कोई कहता है आधा गिलास खाली है, कोई कहता आधा भरा हुआ है। समझ गए ना? हर किसी की अपनी अपनी सोच है। आपने अच्छा काम किया, हम खुश हुए। बात क्या है, इसको मैं अभी सुबह सिविल भी दे देता 10,000, पर वो पैसा सब हर जगह पैसा नहीं चलेगा, है ना। आंटी जी, मैं अभी आपको 5,000 रुपये कैश दे के जाऊंगा और रोटी वाले को पैसा दे के जाऊंगा। और बताओ आपकी क्या मदद कर सकते हैं अभी? और बताओ, सबसे जरूरी मदद बता बेटा। दवाई कर खाती मीरो, दवाई मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ। करती फ्लोरा वाली ड्योरा की तेल मरती या देसी दवाई खाती, वो भी गर्म है। आप मेरी बात सुनो, देसी दवाई फर्क पड़ रहा है आपको उससे? आप उसको छोड़ो, मैं आपकी शुरू से इलाज शुरू करवाता हूँ, सारे टेस्ट करवाता हूँ, रिपोर्ट करवाता हूँ। इसके साथ में इनकी बेटी चली जाया करेगी, मेरा एम्बुलेंस वाला यहाँ से लेके जाया करेगा, छोड़ के जाया करेगा। इनको रोटी पानी के लिए अभी 5,000 दे जाता हूँ मैं कैश, और बाकी जो है उसको रोटी वाले को बुला लो, वो दे देता हूँ। और बताओ, जरूरी जो काम है इनका, जो आज की जो बेटा तूने कल से मांगने नहीं जाना, प्रॉमिस कर। क्या मैं कल से मांगने नहीं जाऊँगा? गुड। अगर ये कल से मांगने चलेगी, दोबारा नजर आ गई, तो फिर वो फोटो किसकी लगी है? बाबा जी है ना। तो ये बाबा जी ने हमें भेजा, ये बाबा जी ने हमें बोला कि जा मेरी बेटी परेशान है, तो बाबा जी की फोटो लगी है, तो बाबा जी ने ही बोला है कि मेरी बेटी परेशान है, तो जाके फटाफट जाओ, ठीक है। तो बाबा जी का थैंक यू कर देना, करोगे ना? और बताओ क्या ज़रूरत है आपको घर में और किस चीज़ की? हाँ जी माता जी, तुसी हो जाना माता जी चंगी पूरी है। चंगी कर दो, चलान किन्नू? ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰ हाँ, ਦਿਓ। हो जूगी तेरी मम्मी चलाने वाली हो जूगी। होर दस, स्कूले इनू कदों पाना? दस स्कूल कदों पाना? कल चल जी।
कल इसको डाल दूं स्कूल, फिर इसकी कौन कौन सेवा करूंगा? अभी नहीं डालू ना। ऐसे कर मम्मी ठीक हो जाए, एक हफ्ते इनकी दवाई चलवाते हैं, अगर मम्मी तुरने फिरने जोगी हो जाएगी फिर स्कूल डाल तो स्कूल ठीक है। फिर तो दोपहर बाद आके मम्मी की सेवा कर दिया करना, और दोपहर तक मम्मी रह लिया करेगी। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ रोटी वाला बुला लो। बुला देना भाई। ओए वो चल भाई मैं उनको 1 महीने के अभी रोटी के पैसे दे देता हूँ, 3 टाइम रोटी देगा आपको। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ 500 ਫालतू ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे दोस्त जो हैं वो इसको तोल देंगे पैसों से, वो बोलेंगे कितना वजन है तेरा, उतने नोटों से तोल देंगे। पर बात यह है कि हमें पैसे तो जहाँ ढंग से लगे ना सर वहाँ हमें ना ऐसे जरूरतमंद केस नहीं मिलते। दुनिया बहुत है मदद मांगने वाली, हमारे पास रोज मेला लगता है, मैं लाऊंगा 100-150 बंदा रोज। कोई टेंशन नहीं है, नहीं नहीं सर दिक्कत 100 एक मिनट 2 दिन बनाऊं 3 एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन, इधर देखो मेरी बात सुन भाई, कोई चक्कर ही नहीं है यार, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बेफिक्र रहो। देखो तुम अपना फर्ज निभाओ, देखो तुम्हारा भी खुदा है मेरा भी खुदा है, हम दोनों का एक ही बाप है, हम तीनों का एक ही बाप है, तुम्हारा भी मेरा भी इनका भी। और जब बाप एक हो ना तो बच्चों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। तो ये सारी दुनिया का बाप एक है, नाम अलग अलग है, कोई उनको हिंदू धर्म में मानता है, कोई सिख धर्म में मानता है, कोई मुस्लिम धर्म में मानता है। अगर हम अलग अलग होते ना तो हमारा खून अलग अलग होता, अगर हम अलग अलग होते हमारा खून अलग होता, शक्लें अलग होती। हम जब दुनिया में सब हैं, एक ही तरीके से दुनिया में आ रहे हैं, एक ही तरीके से जा रहे हैं, तो क्या अलग अलग है? कुछ भी अलग अलग नहीं है। कोई आप उसको ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े आके दानी बन गए हैं, है ना, कर्म है ना, हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमने भी पता नहीं कितने पाप किए होंगे, हम अपना पाप धोने आए, हमें खुदा ने बख्शे हैं 4 पैसे, तो हम सोच रहे हैं चलो इनके काम आ जाएंगे, इनके दुख कट जाएंगे, हमारा क्या जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखो, गवांडी हो आप सारे जितने भी बंदे यहाँ पर खड़े हो, सब इनका ध्यान रखो, ये स्कूल पढ़े, इसको कभी मिल जाया करो, हंस के। पहली बार इनको आया था मैं ही लेके गया था, कहाँ 3-4 लेके गए थे, कहाँ लेके गए? दयानंद हॉस्पिटल के सामने ही है। क्या कहते वो? उन्होंने बोला इनका इलाज चलना चाहिए। फिर चलवाया नहीं आपने? पैसे कहाँ से? ये भी इनका डोनेशन से हमने उस दिन नहीं आपने मेरे बारे में नहीं कभी सुना? मेरे को 8 साल हो गए। हमने तो मैं आपसे बहुत मिला ज्यादा भी। हमने आपके बारे में पूछा भी था, हमने ट्राई किया था बहुत लेकिन आप ज- तक पहुंच नहीं पाए। क्यों इतना आसान है मेरे तक पहुंचना? मॉडल टाउन लुधियाना में मैं रोज धक्के खाता हूँ 3-3 घंटे रोडों पे, 7 साल से एक भी छुट्टी नहीं है मेरी। फोन पे चाहे मैं नहीं मिलता, पता कि जैसे फोन है ना, अब पूरे इंडिया इतना बड़ा वर्ल्ड है तो सबको फोन करना है मेरे को। हमने सर फोन से ट्राई किया, ज्यादा आप फोन ना से ही 6 try बजे किया। बैठते हो ना, हाँ फिर वहां नहीं आए। नहीं जो मेरी सास थी ना, हम आए थे हाँ। तो आप उनको मिले ही नहीं थे, आप कहीं बाहर गए हो। अरे अगले दिन आ जाते, मेरा टीम बैठा होता है वहां पर, मेरी टीम तो 300। हाँ अगले दिन उनको टाइम आपके आले दुआले कोई ऐसे केस हैं मेडिकली जिनकी हेल्प होनी है, अब बहुत कुछ है यार। अजे तिकरता इस कुड़ी ने मावा तियां ने एक लीर इड्डी मुल दी लेके नहीं हाँ जी, हाँ जी। नहीं पाई। मैं ना इनको भी मैं तेनू दस्या ये जेड़ा मुंडा है ना, ये करदा कवाड़ दा काम, ये दूजे काम ये देखो पैसे इनको और भी दे सकते हैं, पर पैसों का पता क्या है, अभी पैसे इनके चोरी ना हो जाए। बेटा ये ले, ले। ये 5000 तूने खर्चना है, सुनिए, इसको एक कपड़े काम कुपड़े लो, करना इसका जो मर्जी करो, ठीक है। और रोटी वाले को बुला लो आप, उसकी मैं महीने कितना खर्चा होता है रोटी का, जायज मैं पता करता आइडिया मैं उसके सामने मैं फेस पे बात करा देता हूँ। कितना टिफिन का खर्चा है? वो परोठे वगैरह बेचता है, हाँ। तो मैं उनको बोलूंगा कि इनके लिए 2 टाइम की रोटी, 3 टाइम की 3 टाइम की रोटी बना के जो इनको एक खाना है, महीने में खिचड़ी। 5000 4000 हाँ जो तेरा बनता मैं अभी महीने उसको का। एडवांस दे देता हूँ, जिम्मेदारी आपकी कि वो रोटी टाइम से घर दे। जी सर। ठीक है, वही बुलाने हैं, बट ठीक है। आप मोहल्ले वाले भी मेरी बेनती हाथ जोड़ के इनका ध्यान रखना। ध्यान ये नहीं है कि आपने इनको पैसे देने हैं, सिर्फ इनसे आके मीठी 2 बातें करनी। पता क्यों? आपकी 2 मीठी बातें मतलब इसको अच्छा दे सक। कल को देखो आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी छोटी बहन होगी, खुदा का कुछ नहीं पता। अगर ये वक्त आज इन पे है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी सारे बात सुनो। देखो खुदा का कुछ नहीं पता, आज जो टाइम इन पे है हो सकता है कल को हमारे पे भी आ जाए। मैं तो ये सोच के अच्छे कर्म करता हूँ कि यार शायद कल को मैं भी कहीं पड़ा हूँ, कोई मुझे भी उठा के मदद कर दे, है ना। आज अगर अब हम इनकी मदद के लिए आए हैं तो वो खुदा ने भेजा। तो आप गली मोहल्ले वाले हो, रात बरात को इसको जरूरत पड़ती है। देखो पहले तो ये बहुत बुरी बात है कि 4 बजे मांगने जाती है, जमाना नहीं है। तुम भी देखो समाज में रहते हो, यहाँ पर लड़कियां सेफ हैं? लुधियाना पंजाब यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने गलत काम होते हैं, तो कहाँ सेफ है?
सेफ नहीं है ना, तो कोई भी बच्ची है सुबह 4 बजे जा रही है घर से, अच्छी बात नहीं है। अपना मेहनत से घर में रहे तो हाँ, अब आपने इसको जाने नहीं देना, मैं आपको भी अपना नंबर दे के जाऊंगा, मेरी जरूरत है मेरे को फोन कर लो, ये हमारे भाई साहब है, ये आते रहेंगे, इसके बाद 15 दिन बाद बाकी राकेश जी के साथ मैं कॉन्टेक्ट में रहूंगा। ठीक है बेटा, पैसे संभाल लिए, तू कपड़े लेके आने हैं पहले नए, आज मैंने जब दोबारा आऊंगा तो मैंने नए कपड़े देखने हैं तेरे, नए कपड़े ले आ, और मम्मी को भी सूट साट ला दे, ठीक है। और पैसे चाहिए होंगे मैं और पैसे दे दूंगा। इसने तो जैसे आज सिर से बोझ उतारा, आज नहाई सिर धोया, आज ही क्यों एकदम बोधरेशन में थी ये। बॉदरेशन में क्यों थी? बस किस बात की टेंशन है तेरे को? मेरा कोई भाई भी नहीं है। मम्मी की टेंशन है? अरे तू अकेली 100 लड़कियों लड़कों के बराबर है, कर देंगे हल तेरा। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी आंटी जी बोलिए, क्या कहना चाहते हो? हो जाना आंटी, तुसी बिल्कुल आप आंटी ऐसे आपने रोना नहीं है, आपने देखो आपकी बेटी इतना, आजकल की बेटियां ऐसी नहीं है, वो आपकी इतना ध्यान रख रही है, आप ऐसे उसके सामने बार बार रोवोगे अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। मैं आपको इनको मैं सुबह एम्बुलेंस भेज के चेकअप करवाता हूँ लुधियाना के बढ़िया डॉक्टर से। आपने कहाँ से पता किया था इलाज? मैं हॉस्पिटल का नाम, कितना पैसा मांगा था उसने? सोफिया हॉस्पिटल, पता नहीं। पैसे कितने एक मांगे? दिन का जी 5500 रुपये। कोई बात नहीं, एक दिन का 5500 रुपये छोड़ो, हम 55,000 देंगे। मैं सुबह ना इनको एम्बुलेंस भेज के चेक करवाता हूँ, तो अगर हो सके मोहल्ले में एक बंदा तैयार हो जाने के साथ। एक हम 2-3 जने तैयार हो जाएंगे। शुक्र है भाई तेरा, शुक्र है भाई तेरा, बहुत तेरा हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ मैं कि तू इनके साथ चले जाना। मैं सुबह एम्बुलेंस भेज दूंगा, वो ले जाएंगे इनको घर से, खर्चा खुर्चा सारा हम करेंगे, कोई दिक्कत आएगी फिर हमें मिलेगी। अब तूने कल से मांगने नहीं जाना, ठीक है। कोई जरूरत आएगी मैं तेरे को नंबर दे के जाऊंगा अपना, मेरे को फोन कर देना, ठीक है। आप बुला लो उनको, रोटी वाले को, फिर हम चले। आ गया। सुनो देखो विचार करो कितने तक ਆਪਾਂ खड़े हैं, तो जरूर वीडियोज़ ਨੂੰ शेयर करो, तो जरूर आया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।